بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دشمنوں پر مسلط ہو گئے، ان کی روحوں کو ہڑپ کر جا، ان کی روحوں کو ہڑپ کر جا۔ اے دنیا ظلمت کے حاکموں، اپنے مخالفین پر غلبہ پا کر انہیں نیست و نابود کر دے، اور اسے بھی جس نے تجھے سجدے نہیں کیے اور نہ ہی کرے گا۔ میں تیرے موکلوں کو پکارتا ہوں۔ تقریباً 3000 سال قبل خداوند متعال نے ایک بار پھر اپنے صالح بندوں میں سے ایک سلیمان ابن داؤد کو اپنا پیامبر منتخب کیا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو حق و اعتدال کی جانب دعوت دیں۔
सलाम। तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले हैं। हाँ, आओ आओ बैठ जाओ। सलाम सलाम। सलाम अजीजान मन। लोग कहते हैं जब आप तन्हाई में बैठे हो तो आपकी तन्हाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, तुम लोग बिल्कुल भी मुखिल नहीं हुए। आओ बैठो, बैठ जाओ। जब मैं तुम लोगों जितना था तो अपने बाबा दाऊद नबी के हमरा यहाँ आया करता था। वो इसी पत्थर पर बैठा करते थे और नहायत खुश लहनी के साथ आयत ज़बूर की तिलावत फरमाते थे, और तमाम पहाड़ और परिंदे उनके हम आवाज हो जाया करते थे। क्या परिंदे आपके साथ भी बातें करते हैं? परिंदे? भाई, तमाम लोग तैयार हैं? क्या यही हमारी बात चाहें जो तशरीफ ला रहे हैं? दुरूद बर सुलेमान नबी। नबी के फजल पर खुदा का दरूद हो। आपकी दुआ से इस साल हमारी फसल पिछले साल से ज्यादा हुई है। पैगंबर खुदा फसल की कटाई से पहले दुआ नहीं फरमाएंगे। खुदावंद इस दिन को बहुत पसंद फरमाता है, वो दिन के जब इंसान खुद अपना बोया हुआ काटता है और हर वो चीज काटता है जो उसने बोई होती है। परवरदिगारा, इस जमीन पर खैर बरकत नाजिल फरमा और यकता परस्ती की तरवीज में हमारी मदद फरमा। आओ बाइज़्ने इलाही शुरू करते हैं। सलाम। सलाम। सलाम मेरे वाली। आपने बड़ी जहमत की। मरियम अजीज़े जान, आपने क्यों जहमत की? मेरा दिल ही नहीं माना।
یہ سال کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے. ہاں واقعی یہ سب خدا کی لطف و عنایات ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ ہے یہیں پر. سورج میرے لیے پلٹا دو. ہم نے بھرپور کوشش کی کہ سرزمین پر نظام الہی کو نافذ کریں، اس طرح حکومت کریں کہ خدا ہم سے راضی رہے. پھر یہ کیسے مناظر ہیں جو میری نگاہوں کے سامنے لاتا ہے؟ وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟
تیری عظیم اور لازوال حکومت کے مقابل میری حکومت ایک بے جان لاش کی مانند پڑی ہے. خدا بندہ، میں کہاں اور تیری عظیم اور لازوال حکومت کہاں؟ سلیمان، ہم نے بارہا تمہیں اپنی خاص الطاف و عنایات کے لیے منتخب کیا ہے. یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہارے اور تمہارے باپ داؤد کے علم میں اضافہ کیا اور ہم نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر تم دونوں کو فضیلت و برتری عطا کی، اور جبکہ ہم نے تمہیں کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی، ہم نے تم پر وحی نازل کی ہے اور تمہیں کار رسالت کے لیے منتخب کیا ہے. لیکن جان لو کہ عنقریب بہت سے گمراہ لوگ شیطان کی پیروی کریں گے. پروردگارا، مجھے ایسی حکومت عطا کر، ایسی بے نظیر حکومت کی جو رہتی دنیا تک تو کسی کو نہ عطا فرمائے گا، کہ تو بڑا ہی بخشنے والا ہے. تمام قبائلی سرداروں ملک کے تمام کاہنوں کو خبر کر دو کہ جتنا جلدی ممکن ہو یروشلم پہنچے. ہمیں سخت ترین دشواریوں کا سامنا ہے، سخت ترین. جناب یازار، ہمیں نہایت خوشی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یروشلم کے ایک عظیم عالم کا دیدار نصیب ہوا ہے. بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے جناب یازار؟ خداوند متعال نے ہماری حکومت کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی، تو میں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ میری حکومت کو رفت عطا فرمائے، اور اب اس کا یہی ارادہ ہے. آپ کی حکومت کو رفت دے؟ یعنی جنت نظیر بنا دے جو آخر الزمان کی بہشت کی مانند ہو، جو نعمتوں سے مالا مال ہو اور کمال بشری کی معراج ہو. بہشت معود جس کے خاطر بنی اسرائیل اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے. جب تک اس دنیا میں شر اور بدی کا وجود باقی ہے تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی. اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں ان خطرناک فتنوں کی سرکوبی کرنا ہوگی. کیسی فتنے جناب سلیمان؟ فتنہ جنات اور شیاطین. آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں. آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو تمام عالم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ان قریب ان میں سے بعض دوبارہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے. جنات اور شیاطین جو اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے وہ قلیز ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، نزدیک، بہت ہی نزدیک. اور ان قریب وہ ہماری اس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں. اور وہ بہشت تب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ان انسانیت کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیتے. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی حکومت، کیسی جنگ؟ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نہایت سنجیدہ ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کو ملک کے دور دراز علاقوں سے یہاں بلوایا ہے. اور اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس صورتحال میں آپ سب کی مدد اور تعاون. جناب سلیمان، آپ اپنی رسالت کے لیے کیا دلیل رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کس بزرگ نے توریت میں کسی ایسی تفسیر کی تائید کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے خداوند متعال سے درخواست کی، اور خدا نے آپ کی درخواست قبول بھی کر لی. آیا آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی خدا کے ساتھ آپ کی اس گفتگو کا گواہ ہے؟
کیا معلوم کہ یہ سب محض آپ کے اپنے ذہن کا وہم و خیال یہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سبھی میرے باپ داؤد نبی اور میرے بھائی سلیمان کی رسالت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند نے ان پر کیا کیا عنایات کی ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو معجزات ان کی پیامبری سے متعلق نقل کیے جاتے ہیں وہ ہم علماء یہود کے نزدیک کبھی ثابت نہیں ہوئے، اور نہ کبھی ہم نے ان کی رسالت کی کسی واضح نشانی کا کوئی مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں محض آپ نے اپنی حکومتی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے گڑی ہیں۔ خود کو بادشاہ کہلواتے ہیں، بس ہر رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بہتر نہ ہوتا کہ خود کو رعایا کا ہمدرد ظاہر کرنے کے بجائے حکومت کو چلانے کے لیے ہم سے مدد و تعاون طلب کرتے؟ کم از کم یوں اس قسم کی عجیب و غریب من گھڑت کہانیاں بنانے پر مجبور تو نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم سے یہ توقع رکھتے کہ ہم اپنے قبیلوں کو کیسی تصوراتی جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ کیا یہ آپ نہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ذمہ داری کام کم سے چھین لیا تھا اور داؤد کی کتاب زبور کا نفاذ کر کے ہماری کتاب توریت کو پس پش ڈال دیا تھا؟ آپ نے سفینہ نوح میں موجود تمام تبرکات پر بھی قبضہ کر لیا، حالانکہ ہم علماء یہود شریعت موسیٰ کے وارثین میں سے ہیں۔ اپنی جوانی کے آگے ہمارے بڑھاپے اور سفید بالوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں؟ دیگر پیغمبران خدا نوح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ان بندگان خدا نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بہشت خدا کو زمین پر قائم کر سکتے ہیں یا اندیکھے شیاطین کے خلاف لشکر کشی کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نہایت مظلومیت کے ساتھ ارتقاء دین اور ترویج خدا پرستی میں مصروف رہے، اور اس راہ میں کیا فداکاریاں نہیں کی ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہ جب ان کے والد داؤد نے ایک 9 سالہ بچے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا شدید اعتراض کیا کہ حکومت چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، تجربے کی۔ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں، اے بزرگان بنی اسرائیل۔ عالی جناب کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے بیٹھ کر کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ شاہ فرزند مارے خاندان ابراہیم کو بھول گئے جو یوں ہم سے سلیمان کی طرفداری کر رہے ہو۔ دیگر سپہ سالاروں کو بھی ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ آخر کب تک وہ اپنے قبائل کے خلاف قدم اٹھاتے رہیں گے۔ اب اس مسئلے کی باغ ڈور خود ہمیں ہی سنبھالنی پڑے گی، اور دوستو آپ لوگ مختلف شہروں میں جا کر لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ بھائی قبیلے والے اپنے سرداروں کی بات مانیں گے نہ کہ ہماری۔ آیا آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے؟ ہم اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ ہاں، ہم پیغمبر خدا کے پیغام کے اجرا کے لیے آمادہ ہیں۔ اپنی آخری سانس تک۔ یروشلم سب سے زیادہ فتنے یہاں زور پکڑیں گے۔ بس میرے بھائی ابسلم، آپ یہاں دارالخلافہ میں رہ کر یہاں کی حفاظت کریں۔ جناب یوآب، آپ اپنے بیٹوں اور دیگر ماتحت ساتھیوں کے ہمراہ زیبولون روانہ ہو جائیں۔ عالی جناب۔ یہ خاندان کئی جنگوں میں میرے بابا کے ہمراہ شریک رہے ہیں، امید ہے اس بار بھی وہ ہم سے تعاون کریں گے۔ جناب یشبعون، آپ ملک کے جنوبی حصوں کی حفاظت کریں گے، اور دنیا آپ مشرق کے حصے اریحا کی جانب روانہ ہو جائیں۔ امکان ہے کہ سب سے پہلے فتنے یہیں سے سر اٹھائیں گے۔ عالی جناب، تو کیا یروشلم کو فوج سے بالکل خالی کر دیں گے؟ کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ آپ لوگ لشکر اپنے ہمراہ لے جائیں، فتنے برپا ہونے کی صورت میں امن و امان قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔
دنیا جناب ایوب، بڑے لاؤ لشکر کے ہمراہ تشریف لائے ہیں؟ میں اپنے قدیمی جنگجو ساتھی سے ملنے آیا ہوں، اجازت ہے؟ خوش آمدید۔ اے لوگو، ہمیں ایک انتہائی سخت اور کڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ دنیا کے دروازے جنات اور شیاطین پر کھول دیے گئے ہیں۔ اب تک وہ انسانوں کو صرف وسوسوں میں مبتلا کرنے پر قادر تھے، لیکن اب وہ براہ راست ہم پر اثر انداز ہوں گے اور نتیجتاً ہر قسم کی برائی اور شر ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ شیطانی طاقتیں اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ حملہ ور ہوں گی جن کی پہلے انہیں اجازت نہ تھی۔ ایک بہت بڑا خطرہ ہماری گھات میں ہے جس کے لیے آپ سب کو ہوشیار رہنا ہوگا، لیکن شیطانی حملے با ایمان انسان کے مقابل کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتے۔ بس آئیں متحد ہو جائیں اور خود کو خالصتاً اپنے خالق کے لیے وقف کر دیں۔ پروردگار کی رحمت کے دروازے اس کے بندوں پر ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ بس میں آپ سب سے چاہوں گا کہ تقوی اختیار کریں اور فرمان رسول خدا کی اطاعت کریں تاکہ فتنوں کے شر اور شیاطین کے خطرے سے امان میں رہیں۔ تقوی اور اطاعت پیغمبر خدا ہی ہمارا ہتھیار ہے، واحد ہتھیار۔ تو اب تک آئے کیوں نہیں؟ 15 دنوں سے ہمارے بیوی بچے اس عذاب سے دوچار ہیں۔ وہ کہاں سے ہم پر حملہ آور ہوں گے؟ دریا سے، جنگل سے یا پھر پہاڑ سے؟ کہتے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ۔ جنات اور شیاطین کا کوئی وجود نہیں، یہ سب تم لوگوں کے وہم و خیال کی پیداوار ہیں، وگرنہ وہ بذات خود کوئی مادی جسم نہیں رکھتے۔ یہ تم لوگ ہو جو گناہوں کے ذریعے انہیں اپنے ذہنوں میں پروان چڑھاتے ہو۔ حقیقتاً یہ شیطان ہے کیا؟ شیطان ہمارے اعمال اور منفی سوچیں ہیں۔ آپ خدا کی برگزیدہ قوم ہیں، لہذا کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ صرف حاملان توریت کی پیروی کیجیے، نہ کہ دوسروں کی۔ آپ نے کہا تھا یہ میری آخری قسط ہے۔ بہت وقت دے چکا میں تمہیں۔ کیسے ہو اسرا؟ جناب مار، آپ ہی میری کچھ مدد کیجیے۔ 1 سال پہلے جو دھار میں نے ان سے لیا تھا، یہ مسلسل اس کا سود مجھ سے لے رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس کی اب میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شرائع منافع علماء یہود کی متفقہ رائے کی بنیاد پر طے کیا جا چکے۔ اب تک یہ اس کا 2 گنا مجھ سے طلب کر چکے ہیں، جبکہ میرا قرض ویسا کا ویسا ہے۔ میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آخری کہاں کا اصول ہے؟ یہ کیسی شرع ہے؟ آخر خدا نے ایسا حکم کیوں دیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، شریعت خدا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ اگر تم واقعی پریشان ہو تو جناب ماہر سے رابطہ کرو، وہ نسبتاً کم سود لیتے ہیں۔ یہ میرا سامان ہے، آپ مجھ سے یہ زبردستی نہیں لے سکتے۔ لے سکتا ہوں۔ لو، یہ تم ہی لے لو، لیکن یوں پر بات کیوں جھگڑ رہے ہو؟ جھگڑا مت کرو، بس کریں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ دیکھ رہے ہیں؟ میرا ہی بھائی چند سکوں کی خاطر مجھ پر حملہ کر رہا ہے، ہم جن کا آپس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ بھلا ان سکوں کی اہمیت ہی کتنی ہے؟ کتنی اہمیت ہے؟ دیکھ رہے ہیں، جب سے یہ شہر بنی اسرائیل کے ہاتھوں فتح ہوا ہمیشہ ہی امن کا گہوارہ تھا، لیکن اب تم نے لوگوں پر وحشت طاری کر دی ہے
और लोग आपस में दस्तों गिरेबां हो रहे हैं। बिला वजह नहीं जनाब यूएल, दुश्मन हमसे नजदीक हो रहा है और शयातीन हम पर असरअंदाज हो रहे हैं। ऐ लोगो, होश के नाखुन लो, हमें खतरे का सामना है। झूठ से परहेज करें, धोखा न दें, यतीमों और मोहताजों का हक अदा करें, कहीं हसद में मुब्तला ना हो जाएं या दूसरों के माल पर नजर रखें। सूद मत खाएं, सूद मत लें, ताकि शैतान आपको कोई गजन ना पहुंचा सके। आए उस खुदाए मेहरबान की पनाह में आ जाएं और उसकी बारगाह में। जवान, इस शहर में कबीला इब्राहिम की जिंदगी के तमाम उसूल और ज़ाब्ते किताब खुदा की बुनियाद पर तश्कील पाते हैं। हकीकी शरीयत मूसा है, न कि इनकी खुराफात। आखिरी बात, आप में से जिस किसी को भी कोई एतराज हो तो वो अपना कबीला छोड़ दे और यहां से चला जाए, और बस। ये लोग बरसों से इस तर्ज जिंदगी के आदी हो चुके हैं। आखिर आप लोग हालात को दगरगो क्यों करना चाहते हैं? अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। सुलेमान के दावों ने लोगों को मुश्तइल कर दिया है। मैं अब मजीद इन कबाइल को नहीं संभाल सकता। सब के सब सुलेमान की जानिब खींचे चले जा रहे हैं। उसके पास ताबूत सकीना है और वो गैर मामूली ताकत का हामिल है। शैतानों के पलटने से तमाम चीजें उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। नहीं, उनका पलटना हमारे मफाद में है। आराल, इस जादूगर को किसने यहाँ बुलाया है? मैंने इसे बुलाया है। इन हालात में हमें मुख्तलिफ जराए से इस्तेफादा करना होगा। सुनो, कुत्तों और भेड़ियों की आवाजें सुन रहे हो? दुनिया के बड़े बड़े नाम और अफराद ने इन्हीं ताकतों के बलबूते पर दुनिया पर हुकूमत की है और नित नए काम अंजाम दिए हैं। नमरूद, फिरौन, कैसे कैसे ना अजीम तमद्दुन मारे से वजूद में लाए। अब हजारों साल बाद फिर ये ताकतें जमीन पर दोबारा पलटेंगी और मुझे उम्मीद है कि वो अपने खिदमतगारों को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगी। आप लोग भी अगर दौलत दुनिया के मुतमन्नी हैं और अगर तमाम कौमों पर बर्तरी और सरवरी के ख्वाह हैं तो हम उनके साथ मिल जाएं। हम उलमाए यहूद। लोग क्या कहेंगे? जनाबे आज़ार, जिस रोज से सुलेमान तख्त हुकूमत पर बैठा है तब से मैं उसके साथ एक फैसला कुन जंग करना चाहता था। जिस वक्त उसने अपने बाप की तरह पैगंबरी का झूठा दावा किया था, ईमान मजीद मोहकम और अज़्म मजीद पुख्ता हो गया। अगर ये मखलूकात आ गई तो उस मगरूर जवान के गुरूर को खाक में मिला देगी। तकवा और इताअत सुलेमान इस वक्त जो ज्यादा खतरनाक है, इताअत सुलेमान है, और इसी बात को उसकी शिकस्त का सबब बनना चाहिए। जब सुलेमान बहुत छोटा था तो एक रोज एक किसान का और एक दूसरे आदमी का, जिसकी भेड़ों ने रात के वक्त उस किसान के खेतों को रौंद डाला था, आपस में झगड़ा हो गया। खुदा ने सुलेमान को फैसला करने की कुव्वत अता फरमाई। दाऊद ने कहा, देखा सुलेमान किस फजीलत का हामिल है, लेकिन मुखालफीन ने हंगामा खड़ा कर दिया कि तुम एक बच्चे को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहते हो। मेरा बेटा सुलेमान मुझे मानीखेज निगाहों से देखने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ गोया वो खुद को आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार कर रहा हो, और आज वो दिन आ ही पहुंचा है। मरियम, मैं उसके लिए निहायत फिक्रमंद हूँ। मादर जान, खुदा हमारे साथ है, वो हमें हरगिज तन्हा नहीं छोड़ेगा। आले दाऊद ने इसी दिन की ही तो तरबियत पाई है मादर जान। मुझे अपने बेटों पर निहायत फख्र है। नन्हे मेहमान की क्या खबर है? पहले की बनिस्बत आजकल उसकी हरकत ज्यादा महसूस कर रही हूँ। मुद्दतों बाद
परवरदिगार ने हमें बच्चे की नेमत से नवाजा है। मुझे तो जलन सी होने लगी है। मुझे ऐसा लगता है जब वो आएगा तो आपकी तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब कर लेगा। बहुत सख्त दिनों का सामना है ना आपको? इससे पहले किसी भी पैगंबर को इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं हुआ है। क्या हम कामयाब हो जाएंगे? परवरदिगारा, मर्दा में यरूशलेम और दीगर शहर आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी खसलतों के असीर हैं। क्या वो इस आजमाइश पर पूरे उतर सकेंगे? क्या हुआ है? पता नहीं। ये क्या कर रहे हो? खुदावन हमारा पुष्पनाह है। सुलेमान नबी ने फरमाया था हम दुआ करके निजात पा सकते हैं। अब तलवार ही बेहतरीन वसीला निजात है। वो दोनों अफराद हमारे कबीले से हैं। वो बाइज्जत लोग हैं। उन्हें छोड़ दो। से काम ले। क्या कल रात नहीं देखा कि क्या हुआ था? बस हम कुछ देर उनकी निगरानी करेंगे ताकि सब कुछ अपने मामूल पर आ जाए। यहाँ सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं। खवातीन और बच्चों की जान को खतरे में मत डालें। अपने सिपाहियों को यहाँ से ले जाएं। वरना खुद ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। जनाब मायर, अमन और अमान के कयाम में आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। देखा, देखा।
جناب سلیمان، دیکھیں ان کی بھیڑوں نے ہمارے سال بھر کی محنت ضائع کر دی. اسے بات کے لیے اٹھا رکھیں، فی الحال آپس میں صلح کر لیں. سب سوار ہو جائیں، جلدی کریں، سب سوار ہو جائیں، جلدی کریں. کیا ہوا؟ اچانک ہی روانہ ہوئی ہے. جلدی کریں. غالباً اریحا جا رہے ہیں. جلدی کریں، جلدی کریں، جلدی. بھائی ادونیا، بھائی چند لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب پر حملہ کر دیا ہے. ہم نے اکثر کو گرفتار کر لیا ہے. اس طرح ممکن ہے کہ ہم ان پر قابو پا سکیں. کسی بھی لمحے کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے. جناب سلیمان، ہم خوفزدہ ہیں، کہیں لقمہ اجل نہ بن جائیں. آخر یہ کیسی مصیبت ہے جو ہم پر نازل ہوئی ہے؟ خدایا، اے میرے معبود اور منتہا مقصود، اے میرے یار و مددگار، اے میرے ملجا و ماوا، تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. میں اپنی ہر داد و فریاد فقط تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں.
ताकि फकत तू जो मेरा परवरदिगार है मेरी निजात का सामान करे। खुदाया ये तेरे करम के मुनाफी है कि तू मुझ जैसे कमजोर और नातवा को खूनखार दुश्मनों के चुंगल में यको तन्हा छोड़ दे कि वो बलाएं मुझ पर बुरी तरह टूट पड़े, और जिस इज्जत से तूने मुझे सरफराज फरमाया है उसे खाक में मिला दे। बारे इलाहा, हमारे दिलों को दोबारा अपने ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा दे ताकि हम तेरी खातिर दुश्मनों और मुफसिदों से जंग करने के लिए उठ खड़े हों और शैतान पर गालिब आ जाएं। ये आपका भाई था जिसने हमें लोगों की रहनुमाई न करने दी और उन्हें हमारे खिलाफ उकसाया। वो तो जाहिर है जो मुसीबत भी हम पर वारिद होती है वो मुशक्कस है। किसी ने भी आने वाले खतरे को संजीदा नहीं लिया। ये जवान हत्या के बाजार के मामलात में भी दखल अंदाजी कर रहा था। मामलाते बाजार? इनका मतलब सूद से है भाई। सूद? ये कबीला जब भी दवादारू या ज़राअत के अखराजात के लिए तहीदस्त हुआ है तो इसने हमें से रुजू किया है और हमने हमेशा उनकी मदद की और है। सूद जैसी लानत का क्या करेंगे? माले हराम से आलूदा आपकी जिंदगी का कितना भयानक अंजाम होगा, इसका कुछ अंदाजा है आपको? माले हराम? शहर के काहिनों पर तोहमत क्यों लगा रहे हैं आप? आप तो खुद आसमानी किताब का इल्म रखते हैं। अकाबिरी ने शहर गवाह हैं कि हमने मां सिवाय अपने हक के लोगों से कुछ तलब नहीं किया। कौन सा हक? कैसी तलब? क्या इससे बड़ा अलमिया भी कोई होगा कि तालीमात मूसा के बरखिलाफ बनी इसराइल को इस अजीम और खौफनाक गुनाह का आदी बना रहे हैं और फलाह बेहतरी की राहें हमेशा के लिए उन पर मसदूद कर रहे हैं? कैसा गुनाह जनाब सुलेमान? सूद तो दौलत की जीनत है। उधार लेने वालों की रजायत उसे हलाल कर देती है, तौरात की रूह से भी और दीगर आसमानी सहीफों की रूह से। उस किताब के मुताबिक जिसमें अपनी पसंद से तहरीफात की हैं, उसके कलिमात में अपने मफाद के मुताबिक रद्दोबदल किया है। किसने कहा कि लोगों के माल से सूद खाना आपका हक? शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या नहीं जानते कि माले हराम वो आतिश जहन्नुम है जो आप सबको जलाकर खाकस्तर कर देगी? तो फिर हमारा जरिया माश क्या होगा? क्या भूख के मारे आवारा और सरकर्दा दर दर भीख मांगकर आलिमों की इज्जत को खाक में मिला दे? वाह हो आप लोगों पर, वाह हो कि आप लोगों की कम इल्मी आपकी सरकशी का बायस हो गई है। अब मुझे समझ में आया कि खुदा ने मेरी हुकूमत को एक लाश की सूरत में पड़ा हुआ मुझे क्यों दिखाया था। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए कि मुझे आप लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। कल मैं आप लोगों के पास किसी और को भेजूंगा, वो जो आप लोगों से ज्यादा इल्म रखता हो, वो जिसका इल्म उसकी गुमराही का बायस न बना हो। पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए लेकिन वो साबित कदम रहेगा। दुनिया लरस जाए वो नहीं डगमगाएगा। कल का सानेहा याद है? इस वक्त दीगर शहरों की भी यही सूरत हाल है। अगर दोबारा जुनून हम पर तारी हो गया तो? आप में से जिन्होंने भी हक की पैरवी की वो फितनों से अमान में रहे। आपकी वही साबका जिम्मेदारी है। खुदा निगहदार। आप हमारे हमरा नहीं चलेंगे? शाय आसिफ बिन बरखिया, सुलेमान ने उन्हें तलब किया है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। तुमने बताया था कि तुम किसी तिलिस्म को मजीद ताकतवर बनाने में मसरूफ हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सुलेमान को मार डालो। नहीं
मुमकिन है कि ये तिलिस्म खुद मुझ पर ही पलट आए। उसको मारने के लिए हर खतरा मोल लिया जा सकता है। मैं कहता हूं उसे मार डालो। मेरे उस्ताद कहा करते थे, इल्म सहर फिरौन के अजीम साहिरों की मीरास है जो कारवाने मूसा के हमरा दरिया से गुजरे थे। ये उलूम कायनों के पास महफूज रहे और फिर सीना पसीना होते हुए हमारी नस्ल में मुंतकिल हो गए। वो हमेशा कहा करते थे, सूद असर जादू बेनती तरीन अशिया की कुर्बानी मांगता है। बेचारा। तुम चिल्ला शुरू करो, चिल्ला शुरू करो। सूरज की परस्तिश करने वाली अजीम कुव्वतों, ऐ नज़रे पर, ऐ दीनाओ हसन, सुलेमान की अजीम तरीन हस्ती को मार डालो नसीहत के साथ। क्या हुआ? मरियम, हम अपना सफर जारी रखेंगे। भाई, आप यरूशलेम चले जाएं। अतराफ के शहरों में हम चले जाते हैं। खुदा ने चाहा तो हम हालात पर काबू पा लेंगे। शायद चंद सिपाहियों के साथ उनकी हमराई करो। जी आली जनाब। हरकत करें हेब्रोन की जानिब।
खुदावन आपको सब्र जमील अता करे जनाब सुलेमान। यरूशलेम के लोग आपके दर्द में बराबर के शरीक हैं। तुम यही रुको। जी बेहतर। ताज़ियत पेश करता हूं। अजीजों को खो बैठना निहायत सख्त और अजियतनाक होता है। आप अब देख रहे हैं कि हमारा कहना गलत न था। अजीज व कारिब सबसे पहले लुक़्मा अजल बने हैं। आपके दुश्मन हत्ता के बेगुनाह खवातीन और मासूम बच्चों पर भी रहम नहीं करते हैं। आज के बाद खून की नदियां बहेंगी। बेहतर होता कि आली जनाब इस अमर पर राजी न होते और दुनिया के मकाम व मनसब से किनारा कशी इख्तियार कर लेते और दीन की तरवीज करते और हुकूमत हमारे हवाले कर देते। बीवी बच्चे की मौत भी आपको कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करती? क्या यह जरूरी है कि अपनी माँ, भाई और तमाम दोस्तों की कुर्बानी के बाद ही आपको संगीनी का एहसास हो? आखिर कितने लोग आपकी इस जाह तलबी की नजर हों? कितने लोग? हम पर जो भी मुसीबत नाजिल होती है हम उसे मसलहत खुदाबंदी जानते हैं। आपने आले दाऊद की नाबूदी का कसद किया है और मैंने आपके खानदान की निजात और उस्तकारी का। आपने मुझे याद किया। हाजिर खिदमत हूं। मैं जब भी आपको देखता हूं मुझे अपने बाबा याद आ जाते हैं। मुझे अफसोस है। मरियम और अपने बच्चे के लिए मेरा दिल बहुत उदास है। वो दुनिया वालों के इंतकाम की नजर हो गए। वो रहमत खुदाबंदी के मुस्तहिक तो है ना, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के। इस मुक़द्दस चट्टान से एक राह निजात पैदा होगी। यही वो जगह है जहां पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तमाम अंबिया को अपनी इब्तिदा में नमाज पढ़ाएंगे और मेराज पर तशरीफ ले जाएंगे। यही वो जगह है जहां आखिरी ज़माने में उनकी नस्ल से एक मुंजी आखिरी जंग करने के बाद इब्लीस की गर्दन उड़ाएंगे और फिर तमाम मलाइका जमीन पर नूर अफशानी करेंगे। जनाब सुलेमान, हमारे कासिद खबर लाए हैं कि बैत अबिया, बार हरिस और ताले राफिडम जैसे शहरों के लोग शयातीन के हमलों पर गलबा पाने में नाकाम रहे हैं। जनाब याशबाउम और हिजकैल मुश्किल से दो चार हैं और आदुनिया हेब्रून पर काबू पाने के बाद आईने फारिस की जानिब रवाना हो गए। हमें जल्द से बुलून पहुंचना होगा। तुम्हें याद है, ये वो पहली ज़ीरा थी जो तुम्हारे बाप ने अपने हाथों से बनाई थी।
शाहे। जी आली जनाब। आप मेरे भाई के हमरा यहीं रुकिए। इताअत जनाब आली। अब्सलोम, यरूशलेम को मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं और मां को भी। खुदा हम पर रहम करे। तमाम लोगों को मुकद्दस चट्टान की तरफ ले जाओ। उन्हें कहो कि औरतों और बच्चों को वहां पना दे। इताअत। हमने सोचा भी न था कि इस मुश्किल से हमारा वास्ता भी पड़ सकता है। फिर आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? जनाबे याजार, हमें क्या करना होगा? और से सुनो, इस वक्त वो मुल्क के दूर दराज इलाकों के सफर पे गए हुए हैं। यही वो सुनहरी मौका है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। हमें सुलेमान के लौटने से पहले ही अपना काम कर दिखाना है। बानो मिशेल, हमारा क्या होगा? कुछ कीजिए बानो, हमें बहुत डर लग रहा है। डरिए मत, परेशान न हो, खुदा हमारी मदद करेगा। हेब्रून शहर पर हमारे हामियों का कब्जा हो गया है और ये हमारे हाथों गिरफ्तार हो गया। रवाना होंगे। ठीक है, मैं ठीक हूं। चलें दोस्तों, चलें, जल्दी चलें।
शहर से बाहर निकल जाएं, जल्दी। सुकून रहे, हिम्मत से काम ले, बैठ जाएं। जनाब आशर, आप भी आ जाएं, आ जाएं। कश्तियों को पानी में ले जाए, जल्दी करें, जल्दी करें, आ जाए। तरफ चलो, कश्तियों को पानी में डालो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करें, कश्तियों को पानी में ले जाओ, जल्दी करो, आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी आओ। खुदा और उसके पैगंबर की खातिर, खुदा और उसके पैगंबर की खातिर।
परवरदिगारा, मेरे इन सिपह सालारों को अपनी रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ करार दे। जनाब आशिर, आप क्यों? होश में आइए, शर शयातीन से खुदा की पनाह मांगे। मैं आलूदा हूँ, मुझसे खैर की उम्मीद मत रखे। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, खुद को खुदा के सुपुर्द कर दें, आलूदगी को खुद से दूर करें, खुदा की मोहब्बत से गाफिल मत हों। आप खुदा को पुकारें, खुदा को पुकारें, आप ऐसा कर सकते हैं। खुदारा आप कोशिश करें। मैं नहीं कर सकता। खुदा पैगंबर खुदा, अदोनिया मेरे भाई, कबायली सरदारों ने यरूशलेम पर हमला कर दिया है। शरशरम, आप सब जानते हैं ये तमाम हालात सुलेमान के पैदा करता है। हुकूमत दोबारा उनके असली हकदारों के हवाले कर देनी चाहिए। जनाब याजार, बनी इसराइल के रहनुमा, सुनो, तुम्हारी निजात का हल जनाब याजार के पास है, ना कि पैगंबरी का झूठा दावा करने वाले के पास। अल्लाह में बगावत बुलंद किया है, वो भी दाऊद नबी के शहर में, कि जहां लोग उनकी रूह परवर आवाज और ज़ुबूर की दिल नशीन आयात के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। जनाब आसिफ, आप क्यों उस खानदान गासिब की तरफदारी कर रहे हैं? अगर आप मुझे आलिम तरीन शख्स मानते हैं तो जान ले कि हमारे पास ये इल्म गिरा बहा अमानत है। इसके जरिए पैगंबरान खुदा को पहचाने और तस्लीम हो जाएं। अगर ऐसा ना हो तो ये इल्म नहीं, जहालत है। ऐ लोगों, पैगंबरान खुदा से जंग मत करो, ये एक नाकाबिल बख्शिश गुनाह है। डरो कहीं कौम मूसा की तारीख न दोहराई जाए
कि जब कोहे तूर से उनकी वापसी में जरा ताखीर हो गई तो लोग सामरी हारून जादूगर की बातों में आ गए और गुसाला परस्त हो गए। जनाब आसिफ ठीक कहते हैं। मैं शहादत देता हूँ सुलेमान पैगंबर खुदा हैं। लौटो इसहाक। और ये उनके भाई हैं अबसलूम फर्जंद दाऊद नबी। ऐ लोगों, जान लो कि तमाम कबीलों ने मुझसे पैमान बांधा है। अगर मेरा कहा न माना तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आसिफ सच कहते हैं। इतने परेशान क्यों हो? सबसे बड़ा हथियार तो खुद तुम्हारे पास है। खुदाया, मेरी उम्मत को फितनागरों के फितनों से निजात दे। फरेब खुर्दा सिपाहियों और सिपह सालारों, मैं यहूदियों की शरीयत का मुहाफिज निगहबान हूं। हलाल और हराम का तयन सिर्फ मैं करूंगा। मैं तुम लोगों को किताब खुदा की जानिब दावत देता हूं और ये तौरात दस्तूर खुदावंद है, वो किताब खुदा के जो मूसा पर नाजिल हुई है। क्या आप भी दीन खुदा के मुकाबिल आओगे? हम तौरात के मुकाबिल हरगिज नहीं आएंगे। हमला! मेरे पर कब्जा कर लो! इस मर्तबा हमें इंसान नुमा शयातीन का सामना है। हमें जल्द से जल्द यरूशलेम पहुंचना होगा। लेकिन जनाब, तमाम अफराद थके हुए हैं और घोड़ों को भी आराम की जरूरत है। ठीक है, कल सुबह तक आराम करने दो। वहां तक तो कई दिन की मुसाफत है। सुबह तक। परवरदिगारा, दुश्मन मुख्तलिफ अरबों से चार जानिब से हम पर हमलावर हुआ है और हम पर गलबा पाने वाला है। फासला ज्यादा है और मेरा बदन नादवा और मेरी ताकत महदूद। खुदाया, मैं क्या करूं? परवरदिगारा, दस्तगीरी फरमा। यहाँ निस्बतन अमन है। यहाँ आ जाए, जल्दी करे, जल्दी करे। यहाँ आ जाए, जल्दी करे। सुलेमान। परवरदिगारा। सुलेमान, ऐ मेरे महबूब बंदे, हमने हवा को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। उससे इस्तेफादा करो ताकि ये हवा तुम्हारे हुक्म से तुम्हें जहां चाहो ले जाए।
कश्तियों को साहिल पर खींच लाओ, इन्हें आपस में जोड़ना है। इधर आओ, आओ आओ, यहाँ आओ। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। क्या ये उड़ जाएगी? सब सवार हो जाएं, जल्दी करें। दोस्तों जल्दी करें। इलाही, तेरे भरोसे पर।
परवरदिगारा, ये लोग आए दिन तेरे मौजज़ात देखते हैं लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाते। गुनाहों की आलूदगी ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है और उनके क़ुलूब को तारीक। ये खुदा परस्ती की जड़ों को जमीन से उखाड़ फेंकने के मज़मूम अज़ाइम रखते हैं। खुदाया, हम तेरी राह में जान देने से खौफज़दा नहीं, लेकिन हमें डर है कि कहीं ये फितना तेरी हुकूमत में फितना और फसाद न पैदा कर दे, और यकीनन ये तुझे गवारा ना हो। परवरदिगारा, एक बार फिर हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा और हमारी नुसरत फरमा कि तू बेहतरीन नुसरत करने वाला है। सुलेमान, जिन्नात और शयातीन के मादी हो जाने के लिए तैयार हो जाओ कि हमने तुम्हें इन्हें तस्खीर करने की ताकत अदा की है, और ये ताकत हमने तुम्हारी इस अंगुश्तरी में रख दी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी।
शैतान इंसान की तमाम शरारतों और तकलीफों का मंबा है। वो है जो हमारे माबैन जुदाई का मूजिब बना हुआ है। क्या अब भी गफलत से बेदारी और तौबा करने का वक्त नहीं आया है? जान लें कि आज के बाद मेरे हुक्म से जिन्नात और शयातीन हमारी सरजमीन पर मफलूज रहेंगे। लिहाजा इस हकीर और पस्त मखलूक से हरगिज डरने की जरूरत नहीं। जुर्रत के साथ जाएं और सबको कैद कर डालें। तमाम तारीफें सजावार हैं उस खुदा के लिए जो बेआसरों की पनाहगाह है, कि जिसने जिन्नात और शयातीन को हमारा ताबे करार दिया है। लेकिन जान ले कि आखिर जमाने में ये मखलूकात दोबारा जमीन पर नमूदार होंगी और एक बार फिर फसाद और खून रेसी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। सालेहीन इस्तिग़ासा बुलंद करेंगे ताकि खुदावंद करीम एक बार फिर अपनी दस्ते कुदरत का मुजाहिरा करे और एलिया का नूर हम पर नाज़िल फरमाए, ताकि जिस तरह गुज़िश्ता गुनाहगार और नाफरमान कौमों को शिकस्त दी, इसी तरह एक बार फिर तमाम शरपसंद और शयातीन को नेस्त नाबूद कर दे। तब वो आएगा जो दरियाए रहमत है, मुंजी बशर है, और तब सालेहीन जमीन के वारिस होंगे जो रुए जमीन पर एक ऐसी बहिश्त तश्कील देंगे कि जिसमें इंसानियत अपने पूरे औज कमाल को पहुंचेगी। बस खुदाया हमें तौफीक मरहमत फरमा आमाल सालिहा की, ताकि जिस तरह तू पसंद करता है उस जमाने के लिए हम खुद को आमादा कर सकें, ताकि हम तेरे मुखलिस बंदे बन जाएं, तेरे मुतीओ फरमाबरदार हो जाएं, सिर्फ तेरे लिए हों और फकत तुझी से रुजू करें।